crores and still counting. Congratulations, Amar, for spinning off this winner. Thank you, ma'am. Thank you very much. How does it feel? Stree 2 has blockbuster writ all over it. Everyone is asking that only, and answer is I'm feeling very happy. Hmm. Uh, it's a surreal kind of a feeling that you are there in top five films of the like top five grossing films, and your film three, which is your like directed by Amar Kaushik and all those things. It's surreal, but yeah, that's what we all filmmakers uh, want to do to make a good film, and audience should like those films. That is our main motto, and that is happening right now. So I'm very happy for that. But at times when films are flopping left, right, and center, how have you managed to give us, so many hits? Earlier it was Bhedia, of course, Stree was itself was a sleeper hit, and then from your production house we had Munjia as well. Uh, what is the secret? Uh, there is no, I don't know that secret, man. Actually, if you ask me, I'm just trying to work on my script honestly, and just try to be grounded and try to listen to the people. Be a good listener. Whoever gives good feedback on script, I hear them out. I don't ऐसा नहीं करता हूँ कि तुम्हारा सुनना नहीं है मुझे और yeah, and stick to roots. That's what I'm doing. There are any rules for making a franchise? How, I mean, like a sequel precisely? How much of you retain? How much you retain the original? How much of it has to be in continuity, and how much freshness you have to bring to it? Uh, uh, Nothing has been written previously. It is not written. We never thought we are going to make Stree 2 when we were making Stree 1. Uh, Even in Stree 1, there is a full stop. There was an ending in Stree 1 that is going to finish. Then I added that scene while shooting. While shooting that I added that scene that उसकी चोटी she is at अपने उसमें चोटी में लगा रही है. And then there was few thoughts, but it was never we have never planned that we are going to make Stree 2. But then after the film got released, after 2 years, the pressure was coming from the audience firstly. This was not our thing that we want to make, but it was pressure from the audience that we want to know the whole story. And for those years, like for all, like after the release, there was something was going on, like ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, this can go to this extent. All those stories was there in our mind. Mm. And then we sat one day, me and my writer Niren, we sat and we were like, कि चलो लिखते हैं, कहाँ जाती है देखते हैं. And then we started writing it, and yeah, and then लिखते this innovation has come, and few things we added on shoots. It's a process, ma'am. It's a process that you keep on doing, and it's if you are honest, if you are honest to the subject, if you're honest to the characters, things gets automatically things get move on. So we got all the answers in the film, only on the script. Everything was there. So yeah. But the way you ended Street, it did seem that a sequel is coming, but there was some one loose end, so to say. And as we look at this Street 2, we can see that a whole universe. You've already created a universe, and that universe is going to continue for sure. Yeah, so that's what I'm saying. It was not written in the script. So while shooting the film, it was, I think, almost 19th or 20th day we were shooting that bus wala scene, the last scene. And in the bus, she was going away. And that's 2 days before the shoot. I was just going on, and I thought I spoke to my dialogue writer. He even
कि let's do something, I ask my ADs, just bring the choti, whatever choti we have. So the climax we shot later, but this portion, where she takes out the choti and puts it on her choti, that was the idea, just came 2 days before the shoot. So that's how it happens ki when you're making a small film, first film, no one was keen on making that film. Firstly, it was कि बहुत छोटी फिल्म है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड देन करते करते शूट पे आपको लगता है कि आपको भी आपका अपना करियर आपको स्टार्ट कर रहे हो, आप भी चाहते हो कुछ बड़ा करना, बट आपको एक स्मॉल प्लेटफॉर्म मिला है एंड उसमें ही आप क्या करेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा होगा कि, और मुझे क्या लगता है, दिस इज माई थिंग ओनली, कि मुझे लगता है कि कोई भी कहानी कहीं खत्म नहीं होती है। बहुत सारी फिल्म में दी एंड होता है, तो मुझे कभी वो दी एंड जो लिख के आता है ना, वो मुझे बहुत ही कोफ्त होती है उससे। इवन बाला, बाला में भी मेरी कहानी आगे बढ़ सकती है उस जिस तरीके से मैंने छोड़ी है उसको। सो दैट्स हाउ आई परसीव फिल्म्स, दैट्स हाउ आई लव, यूज्ड टू लव फिल्म। इवन कभी हाँ कभी ना जो फिल्म थी, उसके एंड में भी जूही चावला आ जाती है, तो लगता है कि हाँ इसके बाद क्या हुआ होगा शाहरुख और जूही का, से तो मुझे वो वाली फिल्में बहुत पसंद आती थी हमेशा से। सो सेम थिंग, जब अपनी आप पहली फिल्म बना रहे हो, आपको लगा कि खत्म नहीं करता हूँ, लेट्स देखते हैं क्या होगा। आप इतनी बड़ी होगी, सीक्वल बनेगा, उस समय सीक्वल्स का उतना वो भी नहीं था 2018 में कि सीक्वल्स बन रही हैं, और आप छोटी सी फिल्म बना रहे हो, आप सीक्वल बनाना भी चाहते हो कि नहीं। जिस तरीके से लोगों ने परसीव किया, जिस तरीके से उसको उसको फीडबैक आया, जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया, देन एक ड्यूटी आ गई हो गई हमारे ऊपर कि अब तो बनानी ही पड़ेगी। एंड देन ऑल्सो वी वर की जबरदस्ती, मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलता था कि, वो बोलते कब बनाना है, क्या बनाना है, मैंने कहा था कहानी अभी नहीं है, जब आएगी अपने आप तब बनाएंगे। सो करते करते कुछ समय लगा। एक बार तो बीच में छोड़ दिया था, किसी ने, कोई नहीं बात करता था कि हम लोग बनाएंगे, दिमाग से भी हट गया था, एक्टर्स भी भूल गए थे। एंड देन एक दिन मैंने बोला नहीं, अब चलो शुरू करते, क्योंकि जब भेड़िया बना रहा था मैं, जब शुरू कर रहे थे, तो भेड़िया के वक्त मुझे लगा कि आई शुड ब्रिंग माई कैरेक्टर फ्रॉम स्त्री टू इन टू भेड़िया, जना, अभिषेक बैनर्जी। तो वहां से वो उठ के हमारे इस यूनिवर्स में आया, एंड दैट्स व्हेन आवर यूनिवर्स बिकम स्टार्ट बिकमिंग ए यूनिवर्स। एंड देन उसको लेके आए, देन हम स्त्री की कहानी भी सोचना शुरू कर दी थी तब तक। तो स्त्री की कहानी बन चुकी थी, भेड़िया जब हम शूट कर रहे थे, तो वहां का एक इंपॉर्टेंट सीन फ्रॉम स्त्री भेड़िया में आया, लास्ट सीन सीक्वेंस में। तो इस तरीके से बहुत चीजें जुड़ती चली गई। Yeah. But of course, you're saying that you got this idea when you were shooting Bhedia, but many would think, this cross, the moving of characters has come from Hollywood movies. MCU में तो अक्सर ये होता है, they move one character from another universe to another one. हाँ, मतलब अगर अभी मैं अभी ऐसा बोलूंगा कि मैंने ये सब उससे देख के बोला, एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, मैंने अभी तक ना हैरी पॉटर देखी है, एमसीयू की सारी फिल्में भी नहीं देखी हैं, कुछ कुछ बीच बीच की देखी है मार्वल यूनिवर्स की। बट बट मुझे क्या लगता था कि मुझे, मेरे लिए अपने आप ही आ गया था। इवन मैं तो जब भेड़िया बना रहा था, तब भेड़िया में मैं बाला का कोई कैरेक्टर लेके आना चाहता था, कि उसकी गर्लफ्रेंड कैन बी परी, परी हो सकती है, यामी हो सकती है, ऐसा करके मैंने बहुत कुछ सोचा था। तो ये मार्वल, और ये अभी क्या है कि ऑब्वियसली यूनिवर्स बनता है, यूनिवर्स नाम आते ही ये ऑब्वियस है कि इधर के कैरेक्टर्स उधर जाएंगे, उधर के इधर आएंगे और आपस में मिलेंगे। तो ये वेस्ट से लिया है नहीं लिया, आई डोंट नो, बट मैं आपको सच बोलूं तो, अगर आप मुझे पूछोगे, बहुत लोग मेरे एडीज पूछते हैं कि आपने ये फिल्म देखी है, वो फिल्म देखी है, मैं इतना थोड़ा सर झुका लेता हूँ, क्योंकि मैंने सच में बहुत सारी फिल्में हैं जो नहीं देखी हैं। मैंने हैरी पॉटर की सीरीज नहीं देखी है, तो अभी शायद देखना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि एवरीवन कीप्स ऑन आस्किंग कि ये तो वहां का है, ये तो वहां का है, तो क्या क्या नहीं कर। How do you like the fact that the viewers are so engrossed in the in the movie? There is talk about credit war. I mean, who should get the credit? And also, people are speculating that Akshay Kumar's character will pan out like Thanos in the next one. ये सारी जब बातें हैं, जब आप सुनते हैं या मतलब पढ़ते हैं, तो do you take inspiration from this also? कि okay, this is, या or you would like to surprise them? No, no, no. I take inspiration from them. I try to listen to them.
because audience are very sharp. Audience are very sharp, more sharper than us as a filmmakers. But then also you want to surprise them with something, Hmm. So उनका सुन लेता हूँ जो भी बोलते हैं. That's what I'm saying. That's my स्ट्रेंथ कि मैं सुनता हूँ सबकी और करता हूँ अपनी, सो मैं सुन के सबकी राय ले लेता हूँ एंड देन मुझे लगता है कि हाँ अभी मैं क्या करूंगा आपको बताता हूँ, बट कभी कभी बहुत अच्छी राय भी आती है, बहुत अच्छे फीडबैक्स भी आते हैं, देन यू आर लाइक यार ये बहुत कमाल की चीज है, ले ले उठा लें क्या. बट देन यू हैव टू टेक योर यू हैव टू बैलेंस थिंग्स. But horror as a genre in India is not so well respected. You upped the game, you change this. Would you like to take credit for it? And if that is your favorite genre, सी मैं मुझे मेरा मेरा लाइफ को देखने का तरीका कैसा है कि hmm, मुझे किसी ने एक कहानी बताई थी और आपने भी सुनी होगी कि एक गांव में दो सेल्समैन जाते हैं. hmm, और एक सेल्समैन जाता है और अपने बॉस को फोन करता है, जूते जूता बेचने जाते हैं और वो बोलते हैं कि सर यहाँ ना कोई जूता पहनता ही नहीं है, यहाँ तो बिकेगा ही नहीं, hmm, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आके. दूसरा सेल्समैन जाता है, सर यहाँ पे hmm, कोई नहीं जूता पहनता सर, um, बहुत चांसेस है. तो मुझे लगता है कि मैं दूसरा वाला सेल्समैन हूँ जहाँ पे मुझे लगता है अगर ये चीज वर्क नहीं करी तो वहां पे वो चीज ऐसी कुछ बनाओ ताकि वो वर्क करे. तो hmm, दैट्स हाउ आई एम एज अ पर्सन एंड दैट्स हाउ आई ट्राई टू मेक माई फिल्म्स. दैट्स हाउ आई सी द वर्ल्ड. hmm. So this is my thing, you know. So in your filmography, then how do you look at Bala, which wasn't a horror? हाँ बट ऑब्वियसली ना बाला बाला ऑल्सो बाला सी आई मैं जिंदगी भर सिर्फ हॉरर नहीं बना सकता, जिंदगी भर यही दुनिया नहीं कर सकता, Hmm. क्योंकि मैं खुद एज अ फिल्म मेकर बोर हो जाऊंगा. तो मैं जूता बेच चुका हूँ, अब मैं मोजे बेचूंगा, तो Acha, मैं कुछ okay, right. तो so I can sell moja also, I can sell कंगा also, I can sell whatever. बट Hmm. अभी जूते बिक रहे हैं तो बेच रहे हूँ, उसके साथ साथ मोजे भी बेचूंगा, बाला भी बनाऊंगा, कुछ और भी करूंगा, तो बाला फॉर मी, इवन बाला, अगर आप मेरी फिल्मोग्राफी में देखो, बाला इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट आई थिंक विच आई हैव. द काइंड ऑफ जो वो मैसेज जो देती थी, जिस तरीके से चीजें बोलती थी और जिस मजे में बोल के चली गई है, जिस तरीके के कैरेक्टर उसके Hmm. थे, चाहे बाला का हो, चाहे यामी का हो, चाहे लतिका का हो, अपना Hmm. भूमिका, उनके कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे and बहुत Uh, अच्छे से फ्लैश आउट I हुए थे. think it's one of तो मुझे लग Yami's finest performances. या Hmm. शी किल्ड इट, शी इज अ फैबुलस एक्टर. या Hmm. सो सो बीच बीच में मैं वैसा कुछ बनाता रहूंगा, जरूर बनाता रहूंगा. Hmm. लेकिन अब मैसेज की बात करी तो स्त्री में भी मैसेज था, स्त्री टू में भी मैसेज है. तो ये हाउ टफ इट इज टू इनकॉर्पोरेट a message in a film which is largely a comedy which most people are actually going to see for its entertainment value. सो मैम जब हम लोग फिल्म बनाते हैं ना, हम लोग मैसेज होगा बोल के हम फिल्म नहीं बनाते, Hmm. कि हम फिल्म बनाते हैं इंटरटेनमेंट के हिसाब से. मेरा मेरा फर्स्ट वो होता है मोटिव कि वी नीड टू इंटरटेन पीपल, वी नीड टू इंटरटेन. का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं हंसाऊंगा, सिर्फ Hmm. मैं जो भी मूड है उस फिल्म का, जो भी अगर थ्रिलर है या हॉरर है, उनको उस जॉनर में, उनको उस दौरान पूरा मुझे अंदर घुसाना है पब्लिक को. दैट इज वन थिंग. Hmm. अब क्या होता है जब आप फिल्म बना लेते हो, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि आपकी फिल्मी दुनिया में या आपके बोलचाल में हमेशा कुछ ना कुछ एक मैसेज हर चीज का होता है. Hmm. अभी हमारे इंटरव्यू में मैं Hmm. कितने शिष्टाचार से आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझसे कितने अच्छे से सवाल कर रहे हो, ये भी एक मैसेज है कि इस तरीके से बात करनी चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए. तो वही पूरा दुनिया में, फिल्म फिल्म दुनिया में वही है कि उसमें आपको अपने आप मिल जाता है यार Hmm. ये कैरेक्टर का पॉलिटिक्स करेक्ट होना चाहिए. Hmm. ये अगर वो गलत है पॉलिटिक्स, तो उसका कैरेक्टर है वो जो मांग रहा है गलत पॉलिटिक्स. तो Hmm. मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फिल्म से एक होता है कि आप पूरी फिल्म देखने के बाद आखिरी में ऐसा पूछें, हाँ अच्छी थी, लेकिन वो जो बोला है इसने वो भी अच्छा बोला. Hmm. अगर नहीं भी बोलेगा तो भी मेरी फिल्म वर्क करेगी या नहीं करेगी, जो भी है Hmm. वो अलग चीज है. वो Hmm. आधे से ज्यादा लोगों के लिए आ, उनको ये पता भी नहीं है कि मैसेज था कुछ, Hmm. विच आई एम ओके विद. You are okay with. उनको एक But बहुत सारे या subtle या या messages हैं. या Hmm. सो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो सारे जो सटल मैसेजेस है वैसे ही करना चाहिए. क्योंकि अगर आप मुझे हमेशा से, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में हर जगह पिछली फर्स्ट दो फिल्मों से मैं बोलता आ रहा हूँ कि मुझे प्रीची नहीं बनना है ना. मैं उतना प्रीच ज्ञानी हूँ, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैं मतलब
जैसे हमारे फिल्म मेकर्स बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, मैं उतनी अच्छी बातें नहीं बोल पाता, मुझे आती भी नहीं है। तो मुझे समझ होती है कि क्या बातें हैं वो, तो मैं उतनी ही लेवल पे बातें करता हम्म। तो हूँ, लेकिन of course audiences have loved the movie. The figures, box office figures, 500 crores is itself, it's itself speaks. But some critics have not been so happy. So how do you feel about that? Or do you believe a full house is the best critic? नहीं मैम, आई वांट टू प्लीज एवरीवन एक्चुअली, दैट्स हाउ आई आई वांट टू मेक फिल्म्स, आई वांट टू प्लीज माय ऑडियंस, आई वांट टू प्लीज माय रिव्यूअर्स, आई वांट टू प्लीज क्रिटिक्स। बट क्रिटिक्स क्या है? क्रिटिक्स एक निंदक है। क्रिटिक्स का मतलब क्या है? निंदक। तो निंदक हमेशा नीरे राखी। ये Hmm. हमने कबीर दास या तुलसीदास जी, Yeah, किसी yeah, ने भी, correct. मुझे मार पड़ेगी गलत बोला तो, उन दोनों में से किसी ने लिखी है, निंदक नीरे राखिए Huh. तभी आप आगे बढ़ोगे। तो Hmm. मैं उनकी जरूर सुनता हूँ, वो जो भी बोलते हैं मैं जरूर सुनता हूँ, और जितना मुझे लेना होता है मैं उनसे ले लेता हूँ, सीख लेता हूँ। और बहुत बार वो सही भी बोलते हैं, Hmm. बहुत बार वो सही भी बोलते हैं, बहुत बार मुझे लगता है कि हाँ इसकी जरूरत नहीं थी, ये नहीं समझे, बट इट्स ओके। वो Hmm. सबका अपना अपना तरीका है फिल्म देखने का। आप किस मूड में फिल्म देखने जा रहे हो? आप Hmm. अकेले फिल्म देख रहे हो, जैसे ये स्त्री है, इस तरह की कम्युनिटी फिल्म्स होती हैं, जब आप ऑडियंस के साथ देखते हो तो आपको अलग मजा आता है। आप Hmm. जब अकेले बैठते हो तो आपको अलग कुछ दिखता है उसमें। तो आई एम वेरी ओके विथ फ्यू क्रिटिक्स जिन्होंने, जिनको नहीं पसंद आई, जिनके कुछ डाउट्स हैं, जिनको कुछ लगा। आई एम आई एम आई एम ओके विथ इट, एंड आई एम लर्निंग Hmm. from their reviews. And horror com has almost become your signature style. But in this movie, you are there, yourself also. Do you think you see yourself as a lucky mascot for your films? या ऐसा लगता तो है, या Hmm. दैट्स व्हाट आई, वही Hmm. सोच के मैं नाच लेता हूँ कि अरे मैं लकी बास्केट हूँ, वो लकी लकी हूँ अपनी फिल्म के लिए। तो क्योंकि क्या है कि डांस ऐसी चीज है जो अगर आपको नाचना नहीं भी आता तब भी आप थिरकना चाहते हो, Hmm. एंड कि और अपनी फिल्म बना रहे हो, आप खुद के इतने अच्छे गाने हैं, तो Hmm. क्यों ना थोड़ा सा थिरक लिया जाए। आप ऑफ तो थिरकते ही हो जब चल रहे होते हैं, तो मेरा कोरियोग्राफर मुझे खींच लेता है, सर आप वहाँ, और मेरा कोरियोग्राफर जितने ये चारों फिल्म्स में सब सेम है, विजय गांगुली, एंड वो और मेरा ऐसा है कि वो मुझे, उसको पता है कि मैं बहुत बुरा डांसर हूँ, स्टिल वो मुझे खींच के ले आता है, एंड आई एम ऑल्सो ओके विद इट, क्योंकि अभी ये चल रहा है। But when was love for cinema, sown in your mind, and which are the films that you actually grew up watching and wanted to make films like those? Uh, it started with when I was in Arunachal Pradesh, ma'am. It started then. सो मेरे पिताजी ने एक वीसीपी ला के दे दिया था हम लोगों को, और हम लोग हर साल फिल्में देखा करते थे, हर महीने कुछ फिल्में देखा करते थे वीसीपी में लगा के। एंड लाइट नहीं होती थी अरुणाचल में, तो एक फिल्म को हम लोग 3-4 दिन में कंप्लीट करते थे। तो वहां से मुझे लगता है कि एक कीड़ा जो होता है वो आया आपके अंदर। फिर आपकी मेरी माँ, वो भी मुझे कुछ कुछ पढ़ के कहानियां, माइथोलॉजिकल कहानियां पढ़ पढ़ के सुनाया करती थी, तो मुझे मिस्टीरियस कहानियां जो भी होती थी बहुत मजा आता था सुन के। Hmm. तो मुझे लगता है वहां से है। और उसके अलावा फिल्म बफ तो हम सब हैं, ये पूरी हम हमारी जो जनरेशन है वो हम सब फिल्म बफ है। कोई बन गया फिल्म मेकर, कोई नहीं बन पाया। Hmm. हमसे अच्छे फिल्म मेकर्स कहीं और हैं, जो फिल्म बनाने को नहीं मिला जिनको, जो इंजीनियर बन गए हैं, जो डॉक्टर्स बन गए हैं, जो कुछ और काम कर रहे हैं। किसी को मौका मिल गया है वो बना रहा है, और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने सोचा कि मुझे फिल्म बनाने का मौका मिला है, एंड मैं बना रहा हूँ, और मुझे लोग वैसे ही प्यार कर रहे हैं जैसे मैं फिल्मों को प्यार किया करता था, जैसे मैं दुनिया देखा करता था। जब एक फिल्म के बारे में आप अपने दोस्तों के बीच में बैठ के बात कर रहे हो, और अभी मेरी फिल्म के बारे में कुछ दोस्त मिलके बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। Hmm. और किस तरीके की फिल्म बनाना चाहता हूँ, एक्चुअली जो मैंने देखा है बचपन में, उनमें से कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जो मैं बनाना चाहता हूँ, Hmm. यू नो क्योंकि उसमें से कुछ फिल्में ऐसी हैं जो मैं देख के मजे कर लिए, जो देख के हो गए, बट मैं उनसे इंटरटेन हुआ हूँ, बस जरूरी नहीं कि मैं वो बनाना चाहता But the beauty of your movies also is how they're so rooted, how they're so Indianized. Is this again by is this by conscious choice?
कि mostly horror movies, they tend to ape some or the other foreign. मैम, मुझसे बात करके आपको लग रहा होगा कि मैं Hmm. रूटेड ही हूँ। मतलब वो एक हर फिल्म मेकर का अलग होता है कि सेम स्क्रिप्ट अगर मैं किसी और को देता हूँ तो वो अलग बनाता है। Hmm. यही स्क्रिप्ट कोई और बनाता तो अलग बनाता। मैंने ये अपनी बनाई क्योंकि मैं सच में अभी तक तो रूटेड हूँ, मुझे ऐसा लगता है। Hmm. मुझे बहुत लोग बोलते हैं बहुत देसी है तू, तो Hmm. मुझे वो, मैं बोलता हूँ कि अच्छी बात है देसी हूँ तो, जिसमें देसी बोलने में क्या प्रॉब्लम है। तो बट मुझे लगता है कि वो रूटेड, मेरे लिए रूटेड इज जो मैं हूँ वो हूँ। लोगों के Hmm. लिए वो रूटेड होता है, लोगों के लिए वो बोलते हैं देसी है वैसा है, बट मुझे लगता है वैसा तो मैं हूँ ही। Hmm. उसमें नया क्या है, मतलब मेरी सोच ही यही है। जो जिस तरीके की फिल्में मैं बना रहा हूँ यही मेरी सोच है, यही मेरी आइडियोलॉजी। सो देयर इज नथिंग आई एम उठा रहा हूँ। दैट्स हाउ हर फिल्म मेकर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। Of course, you're very young, and of course, very young into filmmaking also, relatively, as compared to other veterans. But what kind of cinema would you like to be remembered for? आई वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड फॉर वॉट एवर आई हैव मेकिंग। पीपल शुड से अरे इसने ये भी बनाया है, इसने ये भी बनाया है, इसने ये भी बनाया है, इसने ये भी बनाया है। बट उसकी अपनी एक छाप है फिल्म में, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, ऐसे मैं रिमेम्बर्ड रहूं। Hmm. और अभी तो सिर्फ 5-6 साल ही हुए मैम, अभी तो Yeah. बहुत, अभी 60 साल और बचे हैं। तो बिल्कुल. बनाते रहना है बहुत। जब Hmm. तक मेरे अंदर से सारे रूट ऐसे निकल नहीं जाएंगे तब तक मैं बनाता रहूंगा। Or casting process, what is your casting process like? And how how do actors like Rajkumar Rao, Pankaj Tripathi, even Abhishek Banerjee, Apar Shakti Khurana, how even even your तो heroine Shraddha Kapoor, what do they bring to the table? सो मच, Hmm. सो मच, मतलब वो अगर ये एक्टर्स नहीं होंगे तो आई, मतलब मेरा आधा काम ये एक्टर्स क्योंकि कमाल के हैं Hmm. वो कर देते हैं, और सेट का माहौल मैं उनको देता हूँ अच्छा, कि ये मेरा सेट का माहौल है, मस्ती करो, और बाकी चीजें हमारा राइटर दे देता है। Hmm. बाकी ये लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही खेलते हैं। एंड अच्छे एक्टर्स जब हो तो आपको भी मजा बहुत आता है उनके साथ इम्प्रोवाइज करने में, क्योंकि मुझे लगता है कॉमेडी फिल्म्स आप लिख तो सकते हो बट Hmm. कभी कभी इम्प्रोवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ यू हैव अ वेरी गुड एक्टर्स लाइक राजकुमार, पंकज जी, अपार, अभिषेक, श्रद्धा, ये सब हैं, तो आपकी इम्प्रोवाइजेशन ऑन सेट इज Hmm. हिलेरियस। मैं अगर पूरा पूरा सीन रख दूं तो ये आधे आधे घंटे का सीन चलता है, मतलब वो कट ही नहीं हो अगर मैं उनको छोड़ दूं। नो सो एक्टर्स, आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव अ ग्रेट एक्टर्स, आई एम वर्किंग विद ग्रेट एक्टर्स। His association with brilliant cinema, but rarely with a blockbuster. या सो हाँ, सो वही कि राजकुमार को देखते हुए हम लोग कब से देख रहे हैं, वी कीप ऑन सेइंग कि कमाल एक्टर है एवरीवन, अभी तो सब लोग बोलने लगे। Hmm. एंड आई फील हैप्पी एंड प्राउड ऑल्सो कि अभी ब्लॉकबस्टर का टैग भी लगा है। Hmm. उसमें मेरा कुछ थोड़ा बहुत योगदान है। Hmm. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि क्योंकि ऐसे कलाकारों को सिर्फ कलाकार के अलावा उनको बॉक्स ऑफिस भी जब मिलता है तो बड़ा मजा आता तो लेकिन स्त्री 3 में हमें ऐसा लग रहा है इसको देखने के बाद कि मे बी अक्षय कुमार विल हैव अ बिगर रोल और वरुण धवन विल हैव अ बिगर रोल. है। ऐसा पता नहीं आप क्यों लग रहा है, लोग तो मुझे बोल रहे थे स्त्री 2 में भी एक्टर्स चेंज होंगे क्या, जब बन रही थी। बट मेरे स्त्री में ये पांचों एक्टर्स ही रहेंगे हमेशा, और उनका किरदार आएंगे जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। यूनिवर्स जब बनता है तो बहुत चीजें चेंज होती हैं, बट इनके बिना स्त्री कभी स्त्री नहीं बनेगी। दैट्स अ प्रॉमिस. दैट्स अ प्रॉमिस, ऑब्वियसली दैट्स अ प्रॉमिस। मतलब हु विल वॉच द फिल्म without Shraddha, without Rajkumar, without Apar Shakti, without Pankaj ji, without Abhishek Banerjee. These are the key people of स्त्री यूनिवर्स। ये स्त्री फिल्म यूनिवर्स में भेड़िया अलग है, अभी हमारी दूसरी आ रही है वो अलग है, मुंजा अलग है, बट जब मिलती हैं तो सबका इधर से उधर कोई जाएगा, कोई इधर से उधर आएगा, है ना। तो
चीजें चेंज होती हैं इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट, बट दुनिया वही रहेगी, कैरेक्टर्स वही रहेंगे। And coming together with Dinesh Vijan, I mean, how did that happen? That how did you join him as a producer yourself? And what kind of relationship you share? You are a director producer. He's obviously just a producer. Is there greater onus on you now? सी हम लोग फ्रॉम फर्स्ट थ्री, ही सॉ माय शॉर्ट फिल्म आबा, Right. एंड वो देखने के बाद ही गेव मी स्त्री, एंड दैट्स फ्रॉम तब से लेके अभी तक वी आर वर्किंग टुगेदर। एंड हम हमारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ज्यादा वी आर लाइक ब्रदर्स, कि ब्रदर दोस्त जो भी बोलना चाहें लोग बोल सकते हैं। कुछ लोग बोलते भी हैं कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इनको तोड़ना चाहिए, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, बट हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम Hmm. लोग फिल्में बनाते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग में कोई ईगो नहीं है आपस में एक दूसरे को लेके, या जैसे मुझे बहुत सारी ऐसी फिल्म बनानी है जो यूनिवर्स की पार्ट नहीं है, जैसे चोर निकल के भागा थी, Hmm. तो मैंने उनको बताई, तो उन्होंने बोला कि तू बनाना चाहता है क्या? मैंने कहा मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो बोला ठीक है साथ में प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे मुंजा थी, तो मैं हर फिल्म नहीं बना सकता हूँ क्योंकि टाइम टाइम फ्रेम आपका 3 साल, 2.5 से 3 साल एक फिल्म बनाने में लग जाते हैं। Hmm. एंड बट आपके पास कहानियां बहुत हैं, आपके पास लोग बहुत हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, Hmm. तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो उनकी फिल्में, उनके साथ रह के आप इन्वॉल्वमेंट आपका होगा, आप इन्वॉल्व रहोगे। बट क्योंकि सेम डायरेक्ट अगर करूंगा मैं बार बार, तो लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत बार देख लिया है, ये तो हो गया है। Hmm. कितनी बार एक एक क्योंकि वही मैंने बोला, फिल्म मेकर टू फिल्म मेकर डिपेंड करता है। Hmm. तो मैं चाहता हूँ कि कुछ यूनिवर्स की फिल्में कुछ और लोग बनाएं, ताकि फ्रेश पर्सपेक्टिव मिले लोगों को भी, ऑडियंस को मिले, क्योंकि ऑडियंस शुड नॉट गेट अरे एक ही तरीके का बोलता रहता है ये। So तो socks, मेरा तरी right? हाँ, कि आज आज तू बेच गया, मैं हूँ पीछे देख रहा हूँ, मार्केट पता है मुझे, बट आज तू बेच गया, तो वो वैसा वाला करूंगा। एंड दीनू और मैं मतलब टच वुड Hmm. सब अच्छा है। एंड वी आर आगे भी हम लोग के बहुत सारे प्लान्स हैं, क्या करना है, कैसे फिल्म बनानी है, क्या यूनिवर्स को कहाँ ले जाना है, और फिल्में कैसी प्रोड्यूस करनी है, तो है काफी कुछ है दिमाग में। So what next then? What next? अब आई कैनॉट कमिट राइट नाउ कि व्हाट इज नेक्स्ट। देयर आर 2-3 थिंग्स स्टिल ऑन पाइपलाइन, कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। Hmm. 2 चीजें हैं, 3 तो ज्यादा बोल दूंगा, 2 चीजें ही हैं उनमें से। पहले क्या बनेगी वो अभी भी अगले नेक्स्ट 1 महीने में मैं डिसाइड करूंगा कि क्या बनाना चाहिए मुझे पहला, अगला किस स्टेज पे स्क्रिप्ट है, तो वो आने के बाद ही पता चलेगा। But what exactly are those? I mean, can you at least tell us about the genre, if not the storyline? अ, अभी बताऊंगा आराम से, उसके लिए एक और इंटरव्यू करते हैं, Like, जिस दिन yeah, अनाउंस करेंगे yeah, उस दिन। certainly we look forward to that also. But हम ब्लॉकबस्टर की बात कर रहे हैं, तो आपने जब पहली फिल्म बनाई, there was no baggage, it came out as a refreshing surprise. It became a sleeper hit. And now, of course, this tag will never leave you. How are you going to, navigate your way through this? And do you feel a little, I mean, बहुत खुशी होगी, I'm sure, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी है before you pick up your next project? हाँ मतलब डर तो, मतलब स्त्री 2 बनाने से पहले जितना डर था उतना डर मुझे Hmm. बाला और भेड़िया बनाने में नहीं था, क्योंकि आप एक का सीक्वल बना रहे हो, तो सीक्वल्स मोस्टली लोग सीक्वल्स को भले ही थोड़ा पैसा ज्यादा कमाती है लेकिन गालियां देते हैं, Hmm. कि क्योंकि उनको पता होता है कि पहली बार जो मजा आया था क्या वो मजा वापस आएगा, Hmm. तो जितना ऑडियंस को था उससे ज्यादा मुझे भी था जब मैंने स्टार्ट किया। एंड देन मेरे राइटर के साथ जब हम में बैठे थे, तो हम लोग ने बोला कि भाई हमको गाली पड़ेगी, ये तो इसके लिए तैयार रहना, Hmm. बट उस कितनी पड़ेगी उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी फिल्म बनाए, और लेट्स नॉट थिंक ऑफ आवर फर्स्ट फिल्म, Hmm. उसका बैगेज अपने ऊपर नहीं लेके चलते हैं। एंड कोशिश बोलना बहुत इजी होता है, बट आपके दिमाग में आपके आसपास के लोग काफी बोलते रहते हैं बस सेकंड कब आएगी, सेकंड कब आएगी, Hmm. बट आपको एक वॉल की तरह वो चीजें सुननी नहीं होती है। मुझे लगता है कि वो आप बोल रहे हैं, बट उसको आप दिल तक दिमाग तक मत ले जाओ, आपके दिमाग में घुसने मत दो उस चीज को।
तो वही अप्रोच रहेगा जब भी थर्ड बनाएंगे, जब भी कुछ और बनाएंगे। हर बार ये नंबर करेगी नहीं करेगी, यू नो, यू डोंट नो। जब 100 कर रहा था स्त्री ने, तब हमको लगा था अरे 100 कर गई पहली पिक्चर, अगला क्या करूंगा, फिर अगली पाला ने कर दिया, फिर भेड़िया भी अच्छी चल गई, नाउ ये भी चल गई। तो हो रहा है, जब तक भगवान साथ दे रहा है, जब तक मेरा दिमाग साथ दे रहा है, जब तक मेरी टीम मेरे साथ है, जब तक मेरे प्रोड्यूसर को मुझ पे विश्वास है, और जब तक मैं एज पीपल से आई एम रूटेड, तब तक चल रहा हूँ, तब तक अच्छा बनता जाएगा। मैं नंबर्स का इसका उसका छोड़ दूंगा बात जब होगा। कभी कभी इस पूरा ये क्रिएटिविटी, जो भी आप क्रिएटिव कुछ क्रिएट करते हो, कभी कभी वर्क करती है, कभी कभी वर्क नहीं करती है। इवन आप मट्टी का घड़ा भी बनाते हो तो पहली बार हो सकता है कोई गिर जाता है, दूसरी बार अपने आपको लगता है बना लिया अब तो आ गया, सडनली आपको कुछ एक हाथ लग जाएगा, मटका टेढ़ा हो जाता है। तो इट्स सिमिलर कि कभी कभी आपको लगता है कि हाँ ये मैं ऐसा भी करता हूँ कि हो सकता है वो वर्क करे ना करे, तो वो भी होगा। तो आई एम प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। जैसे एंड बात करते हैं ब्रेकआउट स्टार्स होते हैं, यू आर ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रेकआउट डायरेक्टर, सो एनी एडवाइस फॉर अदर यंग डायरेक्टर्स? हाँ, सो यंग डायरेक्टर्स को मेरा यही एडवाइस है अभी, मतलब मैं भी यंग ही हूँ वैसे या तो, ऑफ बट कोर्स। जो जो मतलब आई नो व्हाट यू से, उनको यही बोलूंगा जो भी आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जो भी फिल्म बनाना चाहते हैं, उनको बस ये याद रखना चाहिए कि इसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करूंगा, शायद वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी जर्नी थी, उसकी डेस्टिनी थी, उसका एक स्टाइल था। आपको अपना स्टाइल, आपको अपना तरीका आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और जो क्रिब मेंटालिटी है बहुत लोगों की, सिर्फ रोते हैं, सिर्फ लोगों को क्रिब करते रहते हैं, आई थिंक उससे ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि आधे से ज्यादा फिल्म मेकर्स जो हैं वो सिर्फ क्रिब करते हैं, जो नए हैं, कि मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे एक्टर नहीं मिल रहा है, मुझे कोई मिल नहीं रहा है, मुझे ये नहीं। आपको जो मिला है आप उसमें परफेक्ट करो, आपको अपने आप सब सीढ़ी मिलेगी, छोटी सी सीढ़ी मिलेगी आपको चढ़ने के लिए। वो सीढ़ी इतनी दमदार बनाओ कि लोग बोले यार ये सीढ़ी से ही ऊपर जाए। क्योंकि पहली फिल्म भी जब मुझे मिली थी, कौन था हॉरर फिल्म, कौन देख, किसको पता था कि हॉरर बनेगी, क्या बनेगी। एंड राइट नाउ वो टॉप 5 फिल्म्स में है, मतलब वैसे देखे तो प्लीज डोंट क्रेव, रो मत, जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है वो बनाओ। मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। क्या आबा मैंने, आबा जो मैंने बनाई थी मेरी, वो स्टेपिंग स्टोन था अगर आप पूछो तो। आबा कुछ 90,000 ऐसे में बनाई थी मैंने, कहाँ रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेस जाके, अरुणाचल में जाके। उस तरीके का शॉर्ट फिल्म कोई देख ही नहीं रहा था कि ये कैसी शॉर्ट फिल्म है। जो शॉर्ट फिल्म्स आ रही थी जब उस समय बन रही थी, कोई एक्टर को लेके बनाता था, कोई किसी को लेके बनाता था, कोई रोमांस होता था, ये होता था। मैं गया था गाँव में जहाँ पे नो एक्टर्स, और वहां से ही मुझे पता नहीं था कि वो वर्क होगा नहीं करेगा, वो मैं अपने आप को जानने के लिए गया था करने। वो चल गई, उसको नेशनल अवार्ड जो भी इसको मिल गया, जो भी उसकी रिकग्निशन मिला, उसी से मैं आगे स्त्री मिली, उसी से मुझे बाला मिली, उसी से बेड़िया मिली। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि डोंट क्रिप टू मच। सबकी जर्नी अलग होती है। जो जर्नी मिली है, जो पैसा मिला है, जीरो भी पैसा है तो भी आप अपने से बनाओ। मतलब सेकंड फिल्म में, या सेकंड थर्ड फिल्म में यू विल गेट वट एवर यू वांट टू। मैं स्त्री का जिस तरीके का वीएफएक्स है, भेड़िया का जिस तरीके का वीएफएक्स है, फर्स्ट फिल्म में नहीं बना सकता था, क्योंकि मैं क्या बताता कि मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे खुद आता भी है कि नहीं, यू नो। देन यू हैव टू earn money, you have to get that respect from producer, from audience कि हाँ बना सकते हैं, then you'll get more money. So it's all step by step. what you're saying is that be original. That's the first thing. That's the But first thing, be original. But उससे भी बड़ा जो चीज है, उससे बड़ा है कि don't crib, रो मत, बनाओ जो मिल रहा है बनाओ। अब ये आपको कैसा लगा कि आपकी मूवी क्लैश करती है अक्षय कुमार की एक मूवी से, और अक्षय कुमार की वो खेल खेल में वो इतना चल नहीं पाती, लेकिन अक्षय कुमार इज प्रेज टू द स्काईज एंड पीपल आर गोइंग गागा ओवर हिज सरप्राइज एंट्री इन योर फिल्म? मैम वो होगा, वो इंडस्ट्री मतलब क्लैशेस जो होते हैं वो होंगे। मेरे साथ भी भेड़िया में क्लैश हुआ था। दृश्यम बहुत बड़ी बन के आ गई थी, तो लोगों ने बोला कि हो
बस सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आपकी फिल्म का वो डेट मिलती है, आप प्रमोशन चालू कर चुके होते हो। हम्म, क्या चलती है क्या नहीं चलती है ये सब ऑडियंस के ऊपर है, वो मैं ज्यादा उस पर बोलना नहीं चाहूंगा। हम्म, बट इंडस्ट्री है तो क्लैश होंगे ही होंगे, मतलब कोई जानबूझ के नहीं चाहता, सबको अच्छी डेट चाहिए होती है, सब लोग चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ द हम्म, फिल्म बने। वो सैटरडे फ्राइडे के बाद पता चलता है कि क्या लोगों को पसंद आ रहा है, लोग क्या चीज देखना चाह रहे हैं। हम्म, अगर इतना ही पता होता कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा तब तो कोई बात ही नहीं थी। हम्म। मतलब तब तो हम मेहनत भी नहीं करते कि अच्छी फिल्म बनानी, लोड पता है हमको क्या चाहिए, अच्छा लगता है। But your film has come like a ray of hope for other people in the industry also. And industry is not facing the best of its times. Let's admit that. क्या So, कोविड के बाद थोड़ा चीजें चेंज हुई थी, थोड़ी शिफ्ट हुई थी, लोगों का थिएटर में आना बंद हुआ था। hmm, फॉर श्योर, मतलब वो दिख रहा था। हमने भी जाना बंद किया था, थोड़ा कम किया था, क्योंकि कभी कभी लगता है कि अरे ये तो आ जाएगी, ये देख लेंगे। hmm, बट देन कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जो स्पेक्टिकल होती हैं तो आदमी जाता है, अगर स्पेक्टिकल वाली फिल्म नहीं भी होती तो भी जाता है कि एक कम्युनिटी के साथ देखें, hmm, एक लोगों के साथ देखें। चाहे बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे शैतान थी, लोग गए देखने, कि तो लोगों को बस ये दिखना चाहिए कि आप ओरिजिनल फिल्म बना रहे हो, हमसे चीटिंग नहीं कर रहे हो, हमको जबरदस्ती का कुछ आप परोस नहीं रहे हो जो हमको देखना भी नहीं चाहते हैं। उनको सिर्फ एक अच्छी चीज दो, दिखाओ, लोग आएंगे। लोग आएंगे। अभी सिलेक्टिव हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो अलग चीज है, कभी क्या चीज कनेक्ट कर जाती है hmm. किसी को नहीं पता। आप अपनी तरफ से कोशिश ये करो कि आप ओरिजिनल रहो, आप उनको कुछ ऐसा चीज दो जो वो तुरंत देखना चाहते हैं, But ना कि उसके लिए वेट करना चाहते लेकिन इसमें कुछ आपकी डेलिब्रेट था कि थोड़ी सी कॉमेडी ज्यादा मींस मोर हिलेरियस एंड लेस ऑफ हॉरर एटलीस्ट, या कि मे बी थोड़े से लोग इम्यून हो गए थे टुवर्ड्स द हॉरर एलिमेंट? हैं। हाँ, देखिए मैम, हॉरर कैसा होता है कि हॉरर में ना, अगर आपका विलेन, आपका जो हॉरर एलिमेंट है दिख जाता है पूरा ना, तो ऑब्वियसली हॉरर कम हो जाता है, आपको राइट। छुपा के रखना पड़ता है। तो जिस तरीके से स्त्री में था कि वो दिखती नहीं थी, वो हमेशा पल्लू में रहती थी, एंड फीमेल हमेशा डरावनी ज्यादा दिखती है। सॉरी, मतलब मुझे डांट पड़ेगी, मारेंगे लोग, बट फीमेल अगर साड़ी में भी पहन के ऐसे बैठी हुई है तो आपको डर लगेगा। और मेल भूत उतना, आप जब तक वो हरकत नहीं करते तब तक आपको डर नहीं लगता है, तो दैट्स हाउ हम बचपन से हम सुनते आए हैं, बचपन से हमारे राइट। दिमाग में वही साइकिक है। तो ये चैलेंज था मेरा, लेकिन कुछ लोगों ने बोला हॉरर ज्यादा था, कुछ लोगों ने बोला कॉमेडी ज्यादा थी। तो सबको अपना अपना चीजें मिल गई हैं पिक्चर में, तो मैं उसमें खुश हूँ। कि किसी ने बोला एवरीवन। अरे मैं तो बहुत डर गया, या एवरीवन गॉट समथिंग और द अदर। सो एंड सो आर यू। फाइनल क्वेश्चन, आपने कहा कि क्रिप नहीं करना चाहिए, लेकिन some people are not as lucky, and now that you know how things work, you are a producer too. Would you like to give chances to new voices? I'm doing that, ma'am. 100%. I'm already produced 3 films till now, and all three are उसमें से मेरे ही असिस्टेंट्स हैं सब, जिन्होंने वो बनाई है। एंड किसी के साथ मैंने काम किया हुआ था, वो अपनी फिल्म नहीं बना पाया था, वैसे ही लोग हैं। तो Hmm. आई एम गेम टू गिव, मतलब दैट्स हाउ आई बिकम फिल्म मेकर। तो आई वांट टू डू, बट उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनको Hmm. लगता है कि मेरी फिल्म नहीं कर रहा, मेरा नहीं देख रहा, बट मैं सिर्फ अंधा हूँ अच्छी कहानी के लिए। मुझे अच्छी कहानी दिखेगी, मुझे एक नया थॉट दिखेगा, तो मैं आपकी फिल्म प्रोड्यूस करना चाहूंगा। बट अगर आप बोलोगे कि सिर्फ आप मुझे जानते हो, मेरे दोस्त हो, Hmm. मे भी नहीं करूंगा। सिर्फ Hmm. ये स्टेपिंग स्टोन नहीं होना चाहिए। आपकी स्क्रिप्ट, आपकी कहानी ही आपकी स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए। और वही मैं कर रहा हूँ, जो भी, मतलब 6 साल के करियर में 4 फिल्में बना चुका हूँ, 3 प्रोड्यूस कर चुका हूँ, 3 और अभी प्रोड्यूस, मतलब स्टेजेस पे हैं, जो लिख रहे हैं लोग मेरे, सारे मेरे असिस्टेंट्स और सारे जो भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिस लेवल पे,
सी जब तक मैं वो मेरे से कोलेबरेट नहीं करेंगे और मैं सिर्फ उनके लिए प्रोड्यूस करूं, तो मुझे लगता है कि मतलब वैसा वाला करूंगा। अगर मेरा कोलेबरेशन नहीं है, देन Hmm. मेरी जरूरत क्या है इस फिल्म में? आप बना सकते हो, आपको सिर्फ आपको लगता है कि मेरे होने से कुछ फायदा होगा, देन ओनली आई शुड बी पार्ट ऑफ दैट मतलब, फिल्म, यू नो। आपने तो प्रॉमिस किया कि स्त्री थ्री थ्री ऑल्सो वील सी द सेम कास्ट दैट वी हैव लव्ड सो मच इन दीज टू. इसमें इसमें दो राय नहीं है मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई So नई चीज नहीं है what ये। else do you promise viewers who are right now loving everything that you're doing? आई प्रॉमिस आई विल try my best to create this universe Hmm. in such a way that you want keep wanting more of it, कि और More क्या and देखना है, और क्या देखना है, more and more. more. And आप पैसे देते रहोगे तो मेरा VFX और अच्छा होगा, मेरा Hmm. स्केल और बड़ा होगा। तो दैट आई कैन प्रॉमिस। Hmm. और खराब हो तो मुझे बताना, अच्छा हो तो मुझे बताना। दैट्स व्हाट आई कैन प्रॉमिस। But कोशिश मेरी जारी रहेगी, ईमानदार रहूंगा hmm. कहानियों के साथ। And would you say that we are very close to creating an answer to MCU? There is no answer to I don't want to say that Okay. those are, मतलब उनका क्रिएटिविटी अलग है, हम अलग है, हम अलग तरीके से बना रहे हैं, बट ऑब्वियसली let's not compare ourselves to MCU. That's how we got बॉलीवुड का नाम। Hmm. बॉलीवुड हॉलीवुड से बॉलीवुड आ गया है, जबकि हम Hmm. हिंदी सिनेमा है। Hmm. तो कंपेयर करेंगे तो वहीं से MCU बनेगा। लेट्स नॉट कॉल इट एनी CU, Hmm. लेट्स कॉल Let's call it. let's call audience should tell me ki what we should call it. Okay, right, right. Okay, thank you, Amar. Thank you for your time, and once again, congratulations for bringing out such an entertaining film. And I'm Thank so you. glad that it's doing so well on the box office. And thank you for your time and all the best. And let's hope for more blockbusters and meaningful and entertaining films from you. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much.